آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز 24۔ سٹی نیوز 24 سے میں رجالی جعفری۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی مکھیہ خبریں۔ سہارنپور کے چھیتر محلہ انصاریان سے ہوا برآمد چہلم کا جلوس۔ آپ کو بتاتے چلے سہارنپور محلہ انصاریان چھوٹا امام بارگاہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم منایا گیا، جس میں زلزلہ، علم و تابوت برآمد کیے گئے اور سبھی عزاداروں نے ماتمی جلوس نکالا۔ گریہ و نواح خوانی ماتم کرتے ہوئے بڑے امام بارگاہ محلہ جعفر نواز پہنچے۔ پیش ہے رجالی جعفری، اکبر علی و عباس کاظمی خاص۔ السلام علیکم، میں سٹی نیوز سے محمد اکبر۔ آج ہم آئے ہیں سہارنپور کے محلہ انصاریان میں، جہاں چھوٹے امام بارگاہ سے جلوس برآمد ہو کر بڑے امام بارگاہ محلہ جعفر نواز میں پہنچے گا۔ آئیے ہم روبرو ہوتے ہیں یہاں کے مولانا صاحب سے، شیعہ جامع مسجد کے امام مولانا اظہار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، جیسے کہ یہ امام حسین کا جو چہلم ہے، یہ کس طرح منایا جاتا ہے؟ اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ 40 جو شہدائے کربلا علیہ السلام اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور علماء نے کہا ہے خود کہ جتنا زیادہ ہو شیعان اہل بیت علیہ السلام 40 کو جو اس کے اعتبار سے منایا جائے۔ اس کرتے ہیں شب تابوت کی شبی برآمد، زلزلہ کی شبی اور علم کی شبی برآمد کرتے ہیں، اور انجمن ہائے ماتمی نواح خوانی کرتی ہے، سینہ زنی کرتی ہے، اور تمام شیعان اہل بیت، کیونکہ کل جو ہے وہ 20 تاریخ ہے، 20 صفر ہے، جو روزہ ہے، اس میں زیارت بہت زیادہ فضیلت تاکید دی گئی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ روزے 40 یعنی چہلم کے روز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، اور یہ ایک شہدائے کربلا کا چہلم ہے کہ جہاں ان کے گھر والوں کو ان پہ رونے نہیں دیا گیا، ان پہ گریہ کرنے نہیں دیا گیا، ان پہ ماتم کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ جب قید خانے سے کو رہا کیا گیا تو انہوں نے شام میں خود جو ہے ایک گھر خالی کرایا، اور گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی گئی، اور وہاں پہ سینہ زنی اور جو ان لوگوں نے وہاں کی خواتین نے آ کے ان کو پرسہ پیش کیا۔ جیسے کہ یہ چہلم منایا جا رہا ہے، آج کے دن ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جو اتنا؟ واقعی یہ ہے کربلا میں اس سن 61 ہجری 10 محرم میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو 3 دن سے بھوکا پیاسا جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ ان کا آج چہلم ہے۔ 10 محرم میں امام حسین علیہ السلام اپنے تمام 72 ساتھیوں سمیت شہید ہوئے تھے، آج جو ہے ان کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آج 20 جناب زینب اولیاء مقام قید خانے سے رہا ہونے کے بعد کربلا پہنچی تھی، جہاں امام حسین کے پہلے زائد جناب جابر ابن اللہ انصاری، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، وہ امام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے زیارت کی، تبھی امام کی قبر سے آواز آئی، جابر تم یہاں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، کیونکہ میری بہن زینب آ رہی ہے، وہ مجھے پرسہ میرے پر گریہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، معلوم کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ اس کی یاد مناتے ہیں ہم لوگ۔ ایک اور شخصیت ہمارے بیچ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ ہمارے چینل کے مادھیم سے کچھ پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ جی بالکل، یہ جلوس اعضاء جو برآمد ہو رہا ہے صرف سہارنپور نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں آل ورلڈ یعنی پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو یہ جلوس ان کی یاد میں برآمد کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ جتنے بہت سے دھرم ایسے ہیں میں نے دیکھا ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو بھائی ہیں، وہ سب شردھانجلی ارپت کرتے ہیں۔ تو آج ہم شہیدان کربلا جنہوں نے کربلا میں شہادتیں پیش کر کے انسانیت کو بچایا ہے، ایکتا کو بچایا ہے، اکھنڈتا کو بچایا ہے، کیونکہ کربلا میں یزید یہ چاہتا تھا کہ جو انسانیت ہے اس کا گلا کاٹ دیا جائے، لیکن حسین نے کہا کہ قیامت تک کے لیے جو اسلام ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے اس کے اندر، وہ قیامت تک باقی رہے گا، چاہے ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں کیونکہ میری بات پوری دنیا میں شاید پہنچ جائے، کہ
हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था तो श्री महात्मा गांधी जी ने करबला की हिस्ट्री को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि यजीद के पास जो है वो लाखों का लश्कर था, लाखों सिपाही थे, लेकिन हुसैन के पास तो सिर्फ 72 हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीत किसकी हुई? आज कोई अपने अगर किसी के यहाँ बेटा हो जाए तो किसी भी धर्म का हो तो वो यजीद नाम रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हुसैन वो इंसानियत का पैकर है कि आज पूरी दुनिया में नाम हुसैन लिया जा रहा है। आप देखिए करबला में पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शुमार किया जाएगा। आज पूरी दुनिया का, मैं मीडिया के ज़रिए से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में करबला में आप देखिए कि सबसे बड़ा इज्तिमा ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे ज़्यादा पब्लिक इस वक्त जो जमा है वो करबला में है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक धर्म के लोग थोड़ा ही हैं, उसमें अहले सुन्नत हज़रात भी हैं और दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसका ये चेलुम मनाया जा रहा है उसने इंसानियत को बचाया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हुसैन उसके हैं कि जो इंसान है। हम चाहते हैं कि जुलूस के ज़रिए से हम पैगाम पहुँचाए कि दुनिया में भाईचारा पैदा रहे, आपस में मोहब्बतें रहें और सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपनी इबादतें करते हैं, लेकिन उन्हें करबला को समझना चाहिए ताकि अमन व अमान, शांति हमारी हिंदुस्तान में कायम रहे, पूरी दुनिया में कायम रहे। इसीलिए मैं आखिर में एक शेर मुझे याद आता है, अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ियात कहकर चले गए कि बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ाए शब्बीर हो जाए, आओ दरे हुसैन पे दुनिया के गमज़दो, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है और कौसर बकौल जोश वो दिन भी करीब है, हर कौम ये कहेगी हमारा हुसैन है, हमारा हुसैन है। इसलिए कि हुसैन हर दिल में बसे हुए हैं जिसके पास इंसानियत पाई जा रही है। तो हमारा मकसद एकता है, अखंडता है, मोहब्बत है, अच्छी लाइफ खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। यही इमाम हुसैन की शहादत का मकसद था, इसीलिए हम जुलूस अज़ा पर यानी कि कहीं ना कहीं कि हुसैन को समझने के लिए मज़हब की नहीं, इंसानियत की ज़रूरत है। यू आर राइट, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इमाम हुसैन को समझने के लिए जाहिर है इंसानियत। अब किसी भी धर्म का इंसान जा रहा है, ये सबील लगी हुई है, चाहे वो हिंदू, हम ये नहीं देख रहे हैं कि किस धर्म का है, कोई भी आए वो पानी पिए, शरबत पिए। क्यों? इसलिए कि ये पानी नहीं है बल्कि हम एक इंसानियत तकसीम कर रहे हैं, इंसानियत का पैगाम है। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया। अगर पूरी दुनिया इंसानियत को समझ ले तो फिर दुनिया से आतंकवाद का वजूद ही ख़त्म हो जाए। बस वो करबला को समझ ले। श्री महात्मा गांधी जी ने जब हिंदुस्तान को आज़ाद किया था अंग्रेज़ों की हुकूमत से, तो क्या उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी और 72 उन्होंने देखा कि करबला में इमाम हुसैन के पास तो सिर्फ 72 थे और वहाँ लाखों का लश्कर था, लेकिन हुसैन जीत गए। वो क्या था? तो उन्होंने देखा कि अगर इरादे मजबूत हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। लिहाजा करबला की हिस्ट्री पर अमल करते हुए श्री महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था और आज उसी का ये फैज़ है कि आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है। हम आज़ादी से, हर धर्म आज़ादी से अपने अपने एतबार से जी रहा है। तो जाहिर है वैसे करबला सब के लिए। वो हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी थी, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि अगर मेरे पास 72 होते जैसे हुसैन के पास थे तो मैं मात्र 24 घंटे में इस देश को आज़ाद करवा लेता। हाँ, देखिए उनकी एक फ़िक्र थी, उनकी सोच थी, तो क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से वो एक काबिल इंसान थे तो उन्होंने करबला को समझा है। उन्होंने ये बात कही कि मैं आज़ाद करा देता अगर मुझे इतने, तो उन्होंने समझा है कि करबला में कैसे कैसे। और यही इमाम हुसैन ने कहा था कि जैसे असहाब, जैसे जानिसार मुझे मिले हैं नाना या रसूलल्लाह, नाना आपको नहीं मिले हैं, जैसे असहाब मुझे मिले हैं। और यकीनी तौर पर बस आज पूरी दुनिया में करबला है। अगर पूरी दुनिया करबला को समझ जाती है तो फिर हर जगह शांति है, सुकून है। और हमारा मकसद भी है कि हम मोहब्बत और प्यार के साथ जिए, करबला को समझे, करबला को समझिए तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। ये जुलूस अज़ा 40 का शहीदान करबला की याद में हम
मना रहे हैं, बर्पा कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ दो शख्सियत जुड़ी। आज कल हमने जो आपको वीडियो दिखाई थी, कल मीर कोट से जो जुलूस बरामद हुआ था वो बड़े इमाम बारगाह महल्ला जाफ़र नवाज़ में पहुंचा था। आज छोटे इमाम बारगाह महल्ला अंसारियान से जो जुलूस बरामद हो रहा है वो बड़े इमाम बारगाह महल्ला जाफ़र नवाज़ पहुंचेगा। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मैं मोहम्मद जो मुसाफिर है वो मैदान से नहीं हट सकता, जुल्म जब बढ़ता है तो सब्र मजा देता है, दूध खुद अपने ही कातिल को पिला दे। हमारे पास ईमान नहीं था, आपने हमें ईमान की दौलत अता की। हम जीने का सलीका नहीं जानते थे, आपने हमें सलीका दिया। अब हमारी भी कुछ शरई जिम्मेदारी बैठती है कि हम भी आपके लिए कुछ करें। अब रसूल ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया कि यहाँ देखा साथ में कुछ तश्त है जिनमें हीरे जवाहरात हैं, उस वक्त की करेंसी है, कुछ लिबास है, बहुत कीमती लिबास है। तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे लिए ये सब चीजें नहीं है, ना मैं लेना चाहता। फौरी तौर पर आयत नाज़िल हुई है, अजरानी जन्नत फिर तौबा, ए रसूल कह दो कि मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके मेरे तक़वा से मवद्दत। अब जब मामला मवद्दत का आता है, अजर का आता है, तो इनके मायनों पे अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें कि अजर किसे कहते हैं। अजर के मायने हैं कि किसी चीज का मेहनताना, क्योंकि वो लोग मुतालबा कर रहे थे कि आपने हमारे साथ इतनी परेशानियां उठाई, इतनी मुसीबतें दे दी, तो हम इसको आपका कुछ अजर देना चाहते हैं। तो अब रसूल के लिए आयत आई, तब रसूल की जिम्मेदारी थी कि उस आयत को पहुंचाएं उन तक। रसूल ने फौरन पहुंचाया। अब नहीं है तो जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि अभी तक आज बन रही हुई थी, अभी सारन का विकास कि हम मदानी हो गए, हुए हैं। कहना था कि बाबा आपके बाद अगर दिन में होता तो रात में तब्दील हो जाता। आज जो कभी आलम इस्लाम ने ये सोचा है कि वो कौन सा था, की आंख बंद हुई, इस दीदी को रोने भी नहीं दिया गया। आज जो अभी अगर दीदी सवाली बन के गई, ये कौन बीबी थी? ये वो बीबी थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तालीम के लिए खड़े होते थे। और जनाब आयशा बताती है कि सिर्फ खड़े नहीं होते थे, बल्कि अपने पास जिस मसनद पे रसूल बैठे हैं वहां भी आ लेते थे कि जिसको मसनद अकेले जब को खड़े हैं, अरे
भैया बात तुमने हमेशा मुझे आका कहा। अरे एक मर्तबा अपनी जबान से भाई कह दो अजीजो, बस ये सुनना था, ये उतारा गया। उसके बाद में जनाब फजल अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन आए, अब इनकी मदद तो आए। थोड़ी देर के बाद में आवाज दी, ए चचा मदद को आइए। अब जरा बसी इमाम हुसैन की देखे कि चचा मदद को आइए। कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है कि आका मदद को आइए। ये फजल बिन अब्बास, अरे ये वो फजल है जिसकी वजह से हजरत अब्बास का नाम अबुल फजल अब्बास रखा गया है। हजरत अब्बास का चाई का बेटा। अब उस तरह जब पहुंचे, ये कौन आ रहा है? अरे जरा गौर से नाम पढ़ो, कौन बिन अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद, हजरत और ये कौन है? ये जनाब फातिमा के लाड, जनाब ज़ैनब के लाडले हैं। अजीजों, जनाब ज़ैनब जब मोहम्मद को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन जब वो मोहम्मद जब अब्दुल्ला के करीब गई तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा, अरे ज़ैनब तुम अपने आप को सुरखरू कर रही हो अपनी वालदा की नजर में। अरे मेरा मुकाला करोगी, मेरे ऊपर दाग लगवाओगी, अपनी तरफ से मोहम्मद को कुर्बान करना, अरे मेरी तरफ से और को कुर्बान करना। आजीजों, ये वो मोहम्मद है कि जनाब ज़ैनब ने अरे कभी इनको नहीं रोई, कभी अली अकबर का मातम किया, कभी अली असगर का मातम किया, कभी अपने शेर जैसे भाई अब्बास का मातम किया, कभी अपने भाई हुसैन का मातम किया, लेकिन अपने बच्चों को नहीं रोई। जब शर आए तो इकट्ठा हुई शाम की औरतें, जब सब आए थे तो उसके बाद में औरतों ने बेसाख्ता पूछा था, ए भाई जरा एक बात बताओ कि ये जो दो सर है, अरे इनका कोई वालियो वारिस नहीं है क्या? अब जनाब ज़ैनब ने कहा कि नहीं, अरे मैं इनकी बदनसीब माँ हूँ। आज़ीज़ों, अब जो दाम उतार रहा है वो जनाब कासिम का है, एक रात का दूल्हा। अरे किस बेदर्दी से शहीद किया। आप आए, मौला की खिदमत में आए। ए चचा इजाजत दीजिए, ए बेटा कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, अरे तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? आका, ए चचा आप इजाजत ना दीजिए, लेकिन मेरे बाबा ने कहा था कि कासिम अगर तुम पे कोई वक्त खतरनाक पड़े, परेशानी का कोई वक्त पड़े तो ये रूपा उतार कर पढ़ लेना और मेरे भाई हुसैन को दे देना। अब ये कहा, अब बाजू से जो रूपा जो साहिब औलाद थे, अरे वो चेहरे घुमा के रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने देखा कि ये इनकलाब ना जाए, ए हुर्मला हुसैन के कलाम को कता कर दो। आज़ीज़ों, तीर चला, सुना होगा तीर सहशोबा, लेकिन कभी सोचने की ज़हमत ना गवारा की हो शायद कुछ लोगों ने कि तीर सहशोबा क्या था। 3 बालों वाला तीर, जिसे आज हम हिंदी में त्रिशूल भी कहते हैं, इस तरह का बना हुआ तीर, अली असगर का 6 महीने का सीर। आज़ीज़ों, अरे 7 मरतबा आगे गए, पीछे आए, लेकिन उसके बाद में आज़ीज़ों, अरे ये वो ताबूत है जो वो उस मजलूम का आ रहा है, अरे जिसके 72 साथी शहीद कर दिए गए, अरे जिसने 72 जंगें लड़ी। अरे सर को खींच लो,
से सजाई गई। अब जरा जैसे ही आई, अरे उम्मे कुलसूम आई, जनाब ज़ैनब ने सवार कराया, उम्मे लैला को सवार कराया। आज तो उम्मे लैला को सवार कराया। अब सबको जब सवार कराया, अकेली रह गई, कोई सवार कराने वाला न था। तो जब हुक्मरान करबला की तरफ रुख किया और आवाज दी, ए भैया आओ अपनी बहन को सवार करा दो। अरे मिलता है मकातिल में कि लाशें में लर्जा तारी हो गया। अरे सर तो वहां रखे हुए थे, उनमें लर्जा तारी हो गया। आज तो ये वो हमारी है कि जनाब ज़ैनब ने पूछा कि कहाँ जाओगी, मदीने में जाओगी कि नहीं, मैं पहले अपने भाई के रोजे पे जाऊंगी, उसके बाद नाना के रोजे पे जाऊंगी। अब जब पहुंची नाना के रोजे पे नहीं गई, पहले भाई के रोजे पे गई। जब भाई के रोजे पे पहुंची तो देखा कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वहाँ बैठे हुए हैं, अरे गिरियावारी कर रहे हैं। ए अब्दुल्ला, अरे क्या तुम्हें जाबिर ये पता नहीं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए? जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, ए शहजादी, मुझे मालूम हो गया है, मैं दफ्ते ही तरफ रहा। उसके बाद में हम ये काफिला चला, करबला की तरफ से मक्का हुआ, जब करबला की मर्ज़ी यज़दा भी है, अंजुमन अकबरिया अकबर से है मुनसलिम और माता मनो होते नजराने। बारगाह सैयदा में पेश करने आई है, तुरसा देने आए हैं, तुरसा दे। मिर्जा नदीम साहब तशरीफ ले।